السلام علیکم سامعین، آج ہم جدید ہندی آریائی زبانوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویڈیو پر نئے ہیں تو لائک و سبسکرائب چینل کو کریں تاکہ آپ تک جلدی پہنچے۔ جدید ہندی آریائی زبانوں کا سلسلہ اب فرانسوں سے ملتا ہے۔ اب فرانسے پراکرت کی بگڑی ہوئی شکل یا بدلی ہوئی شکل تھی، یعنی کہ 400 صدی عیسوی میں اب فرانسے پراکرتوں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، یعنی کہ اب فرانس جو ہے کئی طرح کے اب فرانس پیدا ہوئے۔ پراکرتوں نے جب ادبی روپ اختیار کر لیے اور اس روپ میں قواعد کے اصول و ضوابط شامل ہو گئے تو عوامی زبان کا دھار بدل گیا اور عوام ایک بار پھر سے سادہ، آسان اور فطری زبان اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ زبان اب فرانس کہلائے۔ مختلف اب فرانسوں سے مختلف جدید ہندی آریائی زبانوں کے ابھار کا دور شروع ہوتا ہے، یعنی کہ اب فرانس جو ہے کئی طرح کے اب فرانس وجود میں آئے، جس سے جو ہے وہی اب فرانسوں سے مل جل کر اور بھی جدید ہندی آریائی زبان، یعنی کہ ہندوستان کی آریوں کی زبانوں سے جو ہے کئی زبانیں وجود میں آیا۔ تاریخ کی کتابوں میں جن اب فرانسوں کا ذکر ملتا ہے وہ حسب ذیل ہیں، یعنی کہ اب فرانسوں کے بارے میں جن اب فرانس کا ذکر ملتا ہے وہ دیکھیں۔ پہلا شورسینی اب فرانس، دوسرا ماگدھی اب فرانس، تیسرا اردھ ماگدھی اب فرانس، چوتھا مہاراشٹری اب فرانس، پانچواں پراچڑ اب فرانس۔ انہیں اب فرانسوں سے جدید ہندی آریائی زبانیں نکلی ہیں جن کی تفصیلات یہ ہیں، یعنی کہ جدید ہندی آریائی سے مراد وہ زبانیں جو اب فرانسوں سے مل جل کر اور طرح کی زبانیں وجود میں آئی، جیسے اڑیا، بنگالی، بھوجپوری، مراٹھی اور بھی طرح کے زبانیں جیسے ہندی، اردو، اس طرح کے کئی زبانیں، بنگالی وغیرہ کئی زبانیں وجود میں آئی، تو انہی زبانوں سے وجود میں آئی، انہی اب فرانسوں سے۔ اس تمام زبانوں کو جدید ہندی آریائی زبان کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے شورسینی اب فرانس سے 4 جدید ہندی آریائی زبانیں جیسے کھڑی بولی، راجستھانی، پنجابی، مشرقی اور گجراتی نکلی، تو یہ سب زبانوں کو جدید ہندی آریائی زبان کہتے ہیں، یعنی کہ آریوں کے زبانوں کی نئی زبان۔ اس کے بعد ماگدھی اب فرانس سے 3 زبانیں نکلی جیسے بنگالی، اڑیا، آسامی، اور اردھ ماگدھی اب فرانس سے ساری پوربی بولیاں جیسے اودھی، بھوجپوری وغیرہ زبانیں نکلی۔ مہاراشٹری اب فرانس سے صرف ایک زبان مراٹھی مہاراشٹری اب فرانس سے جو ہے ایک ہی زبان نکلا جو مہاراشٹر کے اندر بولا جاتا ہے جسے مراٹھی، جبکہ کئی اور پراچڑ اب فرانس سے 2 زبانیں مغربی پنجابی اور سندھی نکلتی ہیں۔ ممتاز ماہر لسانیات جارج گریسن نے جدید ہندی آریائی زبانوں کی تقسیم اس طرح کرتے ہیں کہ باہری زبان اور اندرونی زبان اور وسطی زبان، یعنی کہ بیچ کی زبان، اس طرح سے انہوں نے بانٹا ہے۔ تو بیرونی زبان اس نے کسے کہا ہے؟ شمالی مغربی شاخ مغربی پنجابی سندھی، جنوبی شاخ مراٹھی، مشرقی شاخ آسامی، بنگالی، اڑیا، بہاری۔ اب وسطی بیچ کی زبانوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پوربی ہندی، اودھی، بھوجپوری۔ اندرونی زبان کے بارے میں کہا ہے مغربی ہندی اور پنجابی، مشرقی گجراتی، راجستھانی، بھیلی اور پہاڑی زبانیں نیپالی، درمیانی اور جنوبی پہاڑی۔
ये तकसीम ज़बान की शाखत यानी कि बनावट, मसलन इस्मा व फ़ाल की शक्लों और तलफ़ुज़ के फ़र्क की बुनियाद पर की गई है, यानी कि उनके जो है बोल चाल के फ़र्क के बुनियाद पर ये सब ज़बानों को जो है बांटा गया है। ग्रीनसन की तरह सुनीति कुमार चटर्जी भी ज़बान की गिरोह बंदी की है। उनकी गिरोह बंदी की तफसीलात इस तरह है। मध्य प्रदेश की ख़ास ज़बान मगरबी हिंदी है। मध्य प्रदेश की दरमियानी ज़बानें पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी बोलियाँ। मध्य प्रदेश से रिश्ता रखती हैं। यूरोपी हिंदी का रिश्ता बैरूनी गिरोह की ज़बानों से, यानी कि यूरोपी हिंदी का जो है रिश्ता जो है बाहर के ज़बानों से होता है। शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें मगरबी पंजाबी, सिंधी और मशरकी हिंदुस्तान की ज़बानें पहाड़ी, उड़िया, पंजाबी और आसामी। जुनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बानें जुनूब की तरफ, दक्षिण की तरफ जो है हिंदुस्तान की आर्याई की ज़बान जो है वो मराठी है। जदीद हिंदी आर्याई ज़बानों का मुताला ही हमें उर्दू तक पहुँचने का रास्ता देता है। जदीद हिंदी आर्याई ज़बानों का जो मुताला अगर हम करते हैं, देखते हैं गहराई से, तो वही जो है उर्दू तक पहुँचाने का रास्ता बताता है। उर्दू के आगाज़ को दो मंजिलों में ढूंढना चाहिए। अव्वल खड़ी बोली में खड़ी बोली का आगाज़, और दूसरे खड़ी बोली में अरबी फ़ारसी के लफ्ज़ों का जो है शमूल यानी कि घुल मिल जाना, यानी कि मिलजुल कर जो बना, जिसका नाम उर्दू हो जाता है। मीर अमन से लेकर डॉक्टर मसूद हुसैन खां तक ने दूसरी मंजिल के बारे में बात कही है कि जबकि डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी और डॉक्टर सहल बुखारी ने पहली मंजिल पर जोर दिया है। वह बोलियां जो मध्य देश यानी मगरिब और सरहिंद से लेकर मशरिक में इलाहाबाद तक और शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जुनूब में विंध्याचल और बुंदेलखंड तक के इलाके में पैदा हुई है और परवान चढ़ी, मगरबी हिंदी की बोलियां कहलाती हैं। मगरबी हिंदी को अंदरूनी ज़बान की शाख भी कहा जाता है। ये शाख इसलिए भी अहम है कि उसी शाख से उर्दू ज़बान फूटी है। उर्दू की बुनियाद बिलाशुबा खड़ी बोली पर कायम है। खड़ी बोली इलाकाई एतबार से मगरबी यूपी की बोली कही जाती है। खड़ी बोली में जो है ये कई बार हमने कह चुका है कि खड़ी बोली में आखिर में जो है अलिफ का इस्तेमाल होता है, जैसे लाया, आया, खाया, पिया, आना, जाना, इस तरह के ये खड़ी बोली से मुराद है। मगरबी यूपी का इलाका बजानिब शुमाल मगरिब दिल्ली से मुतस्सिल है, यानी कि मिला है। उर्दू बशमूल दिल्ली उन्हीं इलाकों में 12वीं सदी के अवाखिर में मगरिब मारज़े वजूद में आई। तारीख़ी एतबार से ये वह ज़माना है जब दिल्ली पर 1193 ईस्वी में मुसलमानों का सियासी तसल्लुत कायम होता है, यानी कि 1193 ईस्वी में जो है मुसलमानों की जानिब से जो है सियासी हुकूमत कायम होता है और तुर्कों, ईरानियों और अफ़गानों पर मुश्तमिल मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने तर्के वतन करके दिल्ली में सुकूनत इख्तियार की, यानी कि बाहर से आने वाले मुसलमान, ईरानी, तुर्क, अफ़गानी और कई तरह के ऐसे मुसलमान जो है अपने वतन को छोड़कर, ईरान, तुरान, अफ़गान को छोड़कर, तुर्क को छोड़कर, तुर्किस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान में आए और यहाँ पर बस गए। तब से उर्दू का आगाज़ वहीं से शुरू होता है। उस दौर में दिल्ली में सुकूनत इख्तियार करने वालों में पंजाबी मुसलमान की भी एक कसीर तादाद थी।
यानी कि पंजाब में बसने वाले जो मुसलमान थे उसकी भी एक बहुत ज़्यादा तादाद थी, क्योंकि ये लोग पंजाब से ही नकल मकानी करके यानी कि वहाँ छोड़कर हिजरत करके जो है दिल्ली पहुंचे थे। शुमाली हिंदुस्तान में उस नए सियासी निज़ाम के क़याम के दौरे रस नताइज मरतब हुए और यहाँ का न सिर्फ सियासी मंजरनामा बदला बल्कि उसके असरात यहाँ की समाजी और तहजीबी व सकाफती ज़िंदगी पर भी पड़ा, क्योंकि बाहर से आने वाले जितने भी मुसलमान थे वो अपने साथ अपने रीति रिवाज, वहाँ की तहजीब व समाज लेकर आए थे और वहाँ की ज़बानों को भी लेकर आए थे। जो हिंदुस्तान में जब आकर बसे तो यहाँ की आवाम भी उनकी तहजीब को देखकर, उनके समाज को देखकर, उनकी ज़बानों को जो है सुनकर अपने तरफ अखज़ किया और दोनों मिलजुल कर यहाँ कई तरह, इसीलिए हिंदुस्तान कहा जाता है न, कसीरुल लिसान होने के साथ साथ जो है कई तरह के तहजीब भी यहाँ पर शामिल है। ये तब्दीलियाँ लिसानी सूरत हाल पर भी असर अंदाज हुई, चुनांचे बाद वजूहात की बिना पर खड़ी बोली को जो दिल्ली के शुमाली मशरकी खित्ते में यानी मगरबी यूपी में राज थी तक़वियत हासिल हुई और उसका चलन न सिर्फ दिल्ली के गली कूचों, बाज़ारों, मेलों ठेलों नेज़ अवामी सतह पर हुआ, बल्कि धीरे धीरे ये मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी राइज हो गए, यानी कि दूसरे हिस्सों में जो है दूसरे हिस्सों में भी फैल गए। नौवारिद मुसलमानों और मकामी बाशिंदों जिनकी ये बोली थी कि बाहमी आसानी से मिलजुल की वजह से उसमें अरबी और फारसी के अल्फाज दाखिल होना शुरू हुआ, जिससे उसमें निखार पैदा हो गया। खड़ी बोली के निखार का ये ज़माना उर्दू का इब्तदाई ज़माना कहा जाता है। खड़ी बोली के उस नए और निखरे हुए रूप या वासलूब को इब्तिदा में हिंदवी और रेख्ता कहा गया है और उसी को बाद में ज़बान उर्दू मुअल्ला, ज़बान उर्दू और बाला आखिर उर्दू के नाम से मौसूम किया गया। उस लिसानी अमल में मेवाती बोली ने तक़वियत पहुंचाई जो खड़ी बोली की तरह अलिफ पर ख़त्म होने वाली बोली है। मेवाती बोली अगरचे लिसानी एतबार से दिल्ली हरियाणवी बोली के हुदूद में वाक़ है, लेकिन मेवाती बुनियादी तौर पर दिल्ली के शुमाली मगरबी इलाके की बोली है। यही वजह है कि मसूद हुसैन खां कदीम उर्दू की तश्कील में खड़ी बोली के साथ हरियाणवी यानी मेवाती का भी हाथ बताते हैं। हरियाणवी के ये असरात बाद में ज़ायल हो जाते हैं। उसमें कोई शक नहीं कि जदीद हिंदी आरियाई ज़बानों के आगाज़ का ज़माना सना 1000 ईस्वी के आसपास का ज़माना है। ये हिंदुस्तान में सियासी और तहजीबी तब्दीलियों का ज़माना है। 1000 ईस्वी के बाद का जो ज़माना है वो हिंदुस्तान में जो है सियासी और तहजीबी तब्दीलियों का ज़माना है, क्योंकि यहाँ पर जो है कई तरह के सियासी और समाज के लोग आते गए और बसते गए और अपने हुकूमत जमाते गए। सिंधी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी और मगरबी हिंदी वगैरह जदीद आरियाई ज़बानें हैं। ये सिंधी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी और मगरबी हिंदी या बंगाली, उड़िया, जितने भी ये मराठी ज़बानें सब जदीद हिंदी आरियाई ज़बानें हैं। जदीद हिंदी आरियाई ज़बान का आगाज़ 1000 ईस्वी से मगरबी हिंद की मुख्तलिफ बोलियों से होता है, जिनमें खड़ी बोली, मीम, हरियाणवी, जाटो, बांगड़ो, बुर्ज भाषा, कनौजी, बुंदेली, काबिल ज़िक्र है। यही से उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिका का सिलसिला शुरू हो जाता है। सन 700 ईस्वी से अरब ताजिरों की आमद का सिलसिला शुरू होता है, जो केरल, शुमाली हिंदुस्तान के शुमाल की जानिब केरल में जो है ताजिरों की आमद से यानी कि व्यापारियों की आमद से अरब के व्यापारी जो आते हैं केरल में और यहाँ पर पंजाब तक पहुँचते हैं, उनमें
तुर्क और अफगानों का इजाफा होता है। लगभग 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी के दरमियान अरब, तुर्क और अफगान जो अपने साथ अरबी, तुर्की और अफगानी जबान लाए थे, मकामी तहजीब और जबानों को मुतासिर कर रहे थे। गोया उर्दू का जन्म हो रहा था। समझो कि उस वक्त उर्दू का जन्म हो रहा था। शुमाली हिंद में मुसलमानों की हुकूमत के क़याम और दारुल खिलाफा की तहजीब और मुल्क के इंतज़ामात की तमाम तर इंतज़ामिया और फ़ौज में मुल्क भर से लोग उसी मकाम पर इकट्ठा होते गए। यानी कि जो है हिंदुस्तान में जब तुर्कों, अफ़गानों, ईरानियों वाले मुसलमान जब हिंदुस्तान पर आए और यहाँ पर हुकूमत की, तो उनके दारुल खिलाफा से यानी कि सल्तनत से जुड़े लोग, कई तरह के लोग उसमें जुड़े और जो है वहाँ से अपने फ़ायदे हासिल किए और वहाँ से ज़बानें भी सीखी। वहाँ से कई तरह के लेन देन के वजह से वहाँ की ज़बानों को सीखा और वहाँ रहने के बाद जो है वहाँ की तहजीब को भी अपनाते गए। जो दारुल खिलाफा की ज़बान तहजीब से वाकिफ़ होकर मुल्क के गोशा यानी कि कोने कोने में पहुँच गए। दरअसल ये अपने साथ दारुल खिलाफे की तहजीब समेट कर ले जा रहे थे। यानी कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे, जो दारुल खिलाफा से यानी कि सुल्तानों की सल्तनत से जुड़े हुए थे, वो जब अपने यहाँ से दूसरे जानिब कहीं जाते थे तो यहाँ की जो है तहजीब और ज़बान को अपने साथ भी समेट कर ले जा रहे थे। और उस तहजीब का कोई मखसूस नाम नहीं था, अलबत्ता उसे हिंदवी और हिंदी कहा जाने लगा था। यानी कि हिंदुस्तान में जब ये तहजीब या ज़बानें राइज हो गई तो उसे सब लोग हिंदी, हिंदवी या हिंदुस्तानी ज़बान का नाम दे दिया गया, क्योंकि जिस देश में जिस ज़बान को बोली जाती है उसी नाम से उस ज़बान का नाम दिया जाता है। जैसे अरब के लोग बोलते हैं तो उनकी ज़बान को अरबी कहते हैं। बंगाल में अगर बोली जाए तो बंगाली, महाराष्ट्र में बोली जाए तो मराठी। इस तरह के ज़बानों के नाम उनके इलाके के एतबार से दिया जाता है। यानी वह ज़बान जो दारुल खिलाफा यानी दिल्ली में बोली जा रही थी, यही ज़बान बुर्ज, बुंदेलखंड, कुर्बो-ज़वार में भी इस्तेमाल की जा रही थी। मुल्क की मुख्तलिफ अफ़्रांसाओं के बोलने वाले अब अरब, तुर्क और अफ़गान यानी फ़ारसी के अल्फाज, मुहावरे अपने इस्तेमाल में ला रहे थे। उर्दू ज़बान की तश्कील का ये सिलसिला मोहम्मद बिन कासिम के फ़तह सिंध से शुरू हुआ। कहा जाता है कि उर्दू ज़बान की शक्ल सूरत जो है सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम के सिंध को जो है फ़तह करने से शुरू होता है। वादिये सिंध में जहाँ पंजाबी बोली जाती थी, अरबी लफ्ज़ियात, यहाँ तक के अरबी रस्मुल ख़त को भी अपनाया गया। यानी कि सिंध को जब मोहम्मद कासिम ने फ़तह किया तो वहाँ जो है अरबी रस्मुल ख़त यानी कि अरबी से लिखी जाती थी, उसे अपनाया गया था। जुनूबी हिंद के बाहरी रास्तों अरबी जुनूब में दक्कन तक पहुँचे। अरबी जो है जुनूबी के रास्ते से हिंदुस्तान में पहुँचे। बाहरी रास्ते समुद्री रास्तों से अरब वाले जो है जुनूब में पहुँचे, यानी कि दक्कन में पहुँचे। उनसे तेलुगु, मलयालम, तमिल और कन्नड़ ज़बानें बोलने वाले भी मुतासिर हुए। उनकी ज़बानों से जो है तमिलनाडु वाले जो है तमिल, मलयालम वगैरह बोलने वाले उससे मुतासिर हुए और आने वालों की ज़बान ने उन्हें जो है इस कदर मुतासिर किया कि वह ज़बान के दिलदादा बन गए, यानी कि चाहने वाले बन गए। इसी तरह महमूद गजनवी ने फ़ारसी मुतारुफ़ करवाया, यानी कि फ़ारसी ज़बानों से जो है उसे तारुफ़ करवाया, मिलाया, बल्कि उर्दू के बाकायदा ज़बान बनने में अहम किरदार निभाया। उर्दू का रस्मुल ख़त नस्ताल्लुक़ कहलाता है, जो फ़ारसी से मुस्तार
है, यानी कि जो फारसी से उधार में लिया गया है उसके नमूने के तौर पर लिया गया है, इसीलिए उसे नस्तालुक कहा गया है। ईरान के मशहूर आलिम ख्वाजा मीर अली तबरेज़ी इसी रस्मुल ख़त के मुवज्जिद हैं। उन्होंने अरबी के दो मुख्तलिफ रस्मुल ख़त नस्क और ताल्लुक़ से नस्तालुक ईजाद किया, जो उर्दू के लिए फ़ाल यानी कि कारगर साबित हुआ, और उर्दू ज़बान की तश्कील और तहरीर के सिलसिले में भी अरबी व फ़ारसी के हुरूफ व लफ्ज़ियात का चलन आम हुआ। अरबी फ़ारसी लफ्ज़ियात व तराकीब और मुहावरों का इस्तेमाल होता गया। इस तरह हिंदी और उर्दू का बेशुमार अल्फाज का ज़िक्र न सिर्फ यकसा और मुश्तरक है, बल्कि दोनों के कई मुहावरात और कहावतों में भी यकसानियत पाई जाती है, एक जैसा देखने को मिलता है, या वह भी यकसा तौर पर बोले और इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए लिसानी एतबार से ये दोनों ज़बानें हमारी उस मुश्तरके तहज़ीब और कदीम सकाफ़ती खुसूसियात की तर्जमानी करती है, जिसे हम गंगा जमुना या हिंदुस्तानी तहज़ीब के नाम से जाने जाते हैं। ये भी एक हकीकत है कि जदीद हिंदियाई ज़बानों की सूतियात में बड़े दिलचस्पी और दिलचस्प मसाइल दरपेश आते हैं, लेकिन उन तमाम जदीद हिंदियाई ज़बानों में उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो अपनी सूतियात के तनों से भी मुतासिर करती है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसे बोलने वाले और सुनने वाले जो है बेहद पसंद करते हैं। उर्दू एक शीरीं ज़बान है, मिठास वाली ज़बान है, जिसे बोलने में भी बेहद पसंद आता है और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है।